Good day to all students. Students, this is sixth video lecture of chapter 6 molecular basis of inheritance of class 12 biology. Today's topic is translation. As you know that I deliver video lecture on class 9 to 12 biology. If you like this video lecture, then share it to your friends and subscribe it and hit the bell icon for the future notification. So let us start today's topic, translation. Okay, what is definition of translation actually? As we know that firstly DNA converts in RNA and then RNA helps in synthesis of what? Synthesis of protein. So translation refers to the process of polymerization of amino acid to form polypeptide. Okay, by the help of RNAs. So this is the definition of translation. We can say that the genetic information of RNA ultimately coded in the form of a polymer chain of the amino acid that is a protein. The bond forms between amino acid and amino acid is called peptide bond and it required energy. The first phase itself amino acid activated by ATP. It means we can say that this process is completely active process. Why? Because energy is required in this process. 1 ATP and 3 GTP required in the translation process. If two charged tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them. दो चार्ज tRNA पास में आने से उनके बीच में बॉन्ड बनता है. उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. This is a complete short summary of the translation. Firstly, what happened? Initiation takes place. Start codon is AUG and stopping codon are of three types: UAA, UAG and UGA. Initially, tRNA, small subunit, large subunit, all are combined at the mRNA to form what? To form the initiation state. To form means to start the translation process. Then after what happened? After started codon, the first tRNA landing on the P site of the mRNA and the second tRNA landing on the A site of the tRNA. Then amino acid bind with another amino acid to form a long chain of amino acid, that is called polymerization of amino acid and elongation state. And lastly, when the stopping codon comes on the mRNA, the polymerization of amino acid becomes stop, that's called termination. So mainly there are three steps. One is initiation, second is elongation and third one is the termination. One by one इसको discuss कर लेते हैं. Translation, protein synthesis. What is translation? Translation is protein synthesis. Information of mRNA translated into primary sequence of a protein. It discussed in 4 steps. First, activation. Second, initiation. Third, elongation. Fourth, termination. The first one, activation of amino acid. Actually, amino acid firstly react with ATP, and what happened in the presence of amino acyl tRNA synthetase. This is the name of enzyme. This is the name of enzyme, amino acyl tRNA synthetase. It convert into amino adenylate acid plus 2 inorganic phosphate. It means amino acid react with AMP. Now amino acyl adenylate acid, that is amino acid AMP, react with tRNA to form charged tRNA. It means now the amino acid transferred to the tRNA, that tRNA is called charged tRNA, and AMP again release. So this is the steps of what? This is the steps of activation of amino acid. Now, activation of amino acid, each amino acid activated by reacting ATP, tRNA synthesis enzyme attached activated amino acid to on particular tRNA.
It means one ATP firstly react with amino acid to form amino acid AMP, and this is called adenylate amino acid, and then this amino acid transfer to the tRNA. Transfer of amino acid to tRNA, AAMP enzyme complex plus tRNA, AA-tRNA plus AMP. When the amino acid, activated amino acid react with tRNA, the amino acid transfer to like this. This is amino acid tRNA and this is only tRNA. So this is amino acid AMP. Firstly, amino acid AMP is formed. When the amino acid react with ATP, it converts into amino acid AMP, and this amino acid AMP, then amino acid transfer to tRNA. So it forms charged tRNA. Now this type of tRNA is called what? This is called charged tRNA, or you can say amino acid tRNA. So this is the process of activation of amino acid. Now amino acid tRNA synthesis link amino acid to correct tRNA to make activated tRNA, or you can say charged tRNA, one per amino acid. It means एक अमीनो एसिड के लिए जो है tRNA अलग अलग रहते हैं. यूजेज ATP टू कंप्लीट द एस्टर बॉन्ड. इस बॉन्ड बनने में एस्टर बॉन्ड बनता है tRNA के 3' कॉर्नर पे एस्टर बॉन्ड के द्वारा अमीनो एसिड बॉन्ड होता है, एंड द फ्री एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड यूज टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन. इसी बॉन्ड की जो एनर्जी लूज होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में भी काम आती है. ओके, so this is again amino acid acyl tRNA synthesis enzyme and ATP. So finally it helps in what? Finally it helps in formation of charged tRNA, and this charged tRNA, the free energy of this bond is used to form the peptide bond. This charged tRNA reacts with what? Reacts with amino acid to form amino acid tRNA, and it ultimately landing on the ribosome. So in this way we can say that which tRNA land on the mRNA and the ribosome, then the answer is charged amino acid. Now the first step, initiation. इनिशिएशन के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, अगर प्रोकैरियोट है तो 30s और अगर यूकैरियोट है तो 40s, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोट में स्मॉल सब यूनिट 30s होती हैं और यूकैरियोट में स्मॉल यूनिट 40s होती है. एनकाउंटर द एमआरएनए पे जुड़ती है, जैसे आप देख रहे हो उस डायग्राम के अंदर कि 30s यूनिट जो है एमआरएनए पे आके इनिशिएशन कोडॉन पे जुड़ रही है. ठीक है, इसके लिए क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ 30-40s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके ऊपर लैंडिंग होती है टीआरएनए की. अगर प्रोकैरियोट है तो फॉर्माइल मिथियोनिन और यूकैरियोट है तो नॉन फॉर्माइल मिथियोनिन कंटेनिंग, यानी क्योंकि एयूजी कोड फॉर व्हाट? एयूजी इनिशिएशन कोड फॉर द मिथियोनिन. इसीलिए जो पहला टीआरएनए आता है पी साइट पर, एमआरएनए की पेप्टाइडल साइट पे जो टीआरएनए आता है वह टीआरएनए मिथियोनिन लेके आता है. अगर वो मिथियोनिन फॉर्माइल है, अगर वो प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसलेशन हो रहा है तो, और अगर यूकैरियोट में ट्रांसलेशन हो रहा है तो वो नॉन फॉर्माइल मिथियोनिन के साथ में आता है. और इसमें कुछ फैक्टर भी काम में आते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि शुरुआत में जब 30s एमआरएनए से जुड़ रहा था तो IF3 और EIF2 ये कुछ फैक्टर्स थे. अगर IF3 प्रोकैरियोट के लिए फैक्टर है और EIF2 जो है यूकैरियोट के लिए फैक्टर है. दे आर कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर. सो ये पीएमटी में नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से फैक्टर काम में आते हैं, ये आपको लर्न करना है. उसके बाद में जब कॉम्प्लेक्स 30s 40s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स जो तब टीआरएनए के साथ में बॉन्डेड होती हैं, यानी कि कोडॉन और नॉन कोडॉन आपको पता है एंटी कोडॉन और कोडॉन में बॉन्ड बनता है, तो उसके अंदर जो इनिशिएशन फैक्टर है प्रोकैरियोट में वो IF2 काम आता है और यूकैरियोट में EIF3 और साथ में एक GTP खर्च होता है. अभी तक आपने देखा था एक ATP खर्च हुआ था अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने पे. तो अगर आपका क्वेश्चन पीएमटी नीट लेवल पे आ जाए कि हाउ मेनी ATP आर कंज्यूम इन द ट्रांसलेशन, देन योर आंसर इज 1. और GTP की बात आए तो GTP पहला GTP जो है आप देख रहे हैं कि 30s स्मॉल सब यूनिट एंड एमआरएनए कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब टीआरएनए लैंड करता है, फर्स्ट टीआरएनए लैंड करता है तो उस समय जो एनर्जी खर्च होती है वो GTP, हर बार जब टीआरएनए लैंड करेगा तो GTP खर्च होगा.
देन अटैचमेंट उसके बाद में क्या होगा, एक लार्जेस्ट सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की, अगर प्रोकैरियोट है तो 50s और अगर यूकैरियोट है तो 60s लार्जेस्ट सब यूनिट अटैच होगी। और उसके लिए भी इनिशिएशन फैक्टर दे रखे हैं कि अगर प्रोकैरियोट है तो IF1 इनिशिएशन फैक्टर काम आता है और अगर यूकैरियोट है तो EIF1 और EIF4 इनिशिएशन फैक्टर वर्क करते हैं। सो ये आपका कंप्लीट नॉलेज हो गया। इनिशिएशन को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट व्हेन द स्मॉल सब यूनिट बाइंड विद द mRNA, सेकंड स्मॉल सब यूनिट mRNA complex react with the tRNA, and the third one is the attachment of largest subunit of the ribosome. तो this is all about the initiation, and ये डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि पहले 30s सब यूनिट ऐड होती है, उसके बाद में यहाँ पे tRNA लैंड हुआ है और उसके बाद में बिगर यूनिट भी यहाँ पे ऐड हो रही है। नाउ वन बाय वन कर लेते हैं। अगेन स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे देख रहे हैं, स्मॉल सब यूनिट जो है वो यहाँ पे ऐड हो रही है। तो आपको यहाँ पे जो विशेष बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट के अंदर SD रीजन साइन डेल्गार्नो रीजन होता है और यूकैरियोट में 7 मिथाइल ग्वानोसिन होता है, 7mg 7 मिथाइल ग्वानोसिन, है ना। प्रोकैरियोट में इस इनिशिएशन जिसको अपन कह सकते हैं कि प्रमोटर सीक्वेंस कह दें या आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं, तो रिकॉग्नाइजेशन साइट को आइडेंटिफाई करता है 16SR RNA और 7mg को आइडेंटिफाई करता है 18SR RNA। तो यहाँ पे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर जब स्मॉल सब यूनिट 30S ऐड होती है तो कौन सा rRNA और किस रिकॉग्नाइजेशन साइट को आइडेंटिफाई करता है। देन द आंसर इज 16SR RNA of the small subunit identify the sign Delgado region of the recognition site of the mRNA to initiate the ट्रांसलेशन। और इसी केस में अगर यूकैरियोट है तो यूकैरियोट में 18S आइडेंटिफाई करता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन को, कैपिंग में रहता है mRNA के 7 मिथाइल ग्वानोसिन, उसको आइडेंटिफाई करता है और वहाँ जाकर RNA, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्रोटीन बन रहा है, तो पॉलीमराइज एंजाइम, जो भी पॉलीमराइज एंजाइम इसके अंदर काम में आते हैं वो सारे एंजाइम यहाँ आके अटैच होते हैं और इस इनिशिएशन को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड में देख रहे हैं 30S यूनिट जुड़ चुकी हैं या 40S यूनिट यूकैरियोट के अकॉर्डिंगली AUG इनिशिएशन कोडॉन पे जुड़ चुकी हैं और जुड़ने के बाद में उसके ऊपर क्या दूसरा आया है, tRNA, जहाँ पर एक GTP खर्च होता है, एक GTP खर्च होता है और उसमें कौन से इनिशिएशन फैक्टर काम आते हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। तो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द इनिशिएशन व्हेन द 30S/40S mRNA कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद tRNA टू फॉर्म tRNA 30S 40S mRNA complex. Now the third stage, that is the attachment of bigger units. Then after attachment of bigger unit, the third one step of the translation is elongation. Elongation of polypeptide cell. As we note, the first tRNA land on the P site. Now the second tRNA is charged with another amino acid and bind to A site of ribosome. यानी कि अब ये एक्सेप्टर साइड पे ऐड होगा। A फॉर व्हाट, A फॉर एक्सेप्टर एंड P फॉर पेप्टाइडल, यानी P साइट की तरफ पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती है, इसलिए इसको P साइट कहते हैं। और A साइट का मतलब है कि ये एक्सेप्टर साइड हो गया। अब नया वाला tRNA जो होगा वो A साइट पे आकर अटैच होगा। पहला tRNA ऑलवेज लैंड ऑन P साइट एंड द नेक्स्ट वन tRNA, पहले tRNA के अलावा जो दूसरे tRNA होते हैं वो कहाँ अटैच होंगे, वो P साइट पे अटैच होंगे। नाउ अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म CONH बॉन्ड, यानी कि पहले अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, फॉर्म बिटवीन टू कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ मिथोनाइल, यानी पहले अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और अगले वाले अमीनो एसिड का अमीन NH2 ग्रुप के बीच में बनेगा। और इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है उस एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन। जैसे जैसे नया tRNA लैंड होता है 30S एंड 50S की जो यूनिट है राइबोसोम की, उसके साथ में ट्रांसलोकेट होती है अलोंग द mRNA 5'3' डायरेक्शन। अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन इन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन एंड बिकम जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इनमें अलग अलग चीजें होती है कि पहले नया वाला tRNA A साइट पे आएगा,
फर्स्ट स्टेप, सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा द फर्स्ट अमीनो एसिड और सेकेंड अमीनो एसिड के बीच में, जिसमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम काम आता है, और थर्ड वन इज ट्रांसलोकेशन। जैसे जैसे नया टीआरएनए आता है राइबोसोमल यूनिट उसके साथ में ट्रांसलोकेट होती है, एमआरएनए के ऊपर स्लाइड होती है जिसको ट्रांसलोकेट कहते हैं। ये 3 स्टेप इलॉन्गेशन के अंदर होते हैं। This is the all about the elongation. The second site is called A site. This is the first tRNA land on the P site, and initiation complex is completed at this point. Methionine tRNA is bounded to AUG mRNA in the P site of the ribosome. The next codon is positioned in the A site. Now the next amino acyl tRNA enter at the A site. Anticodon bind to the codon. In this केस द कॉडन स्पेसिफिक इज वेलिन। यहाँ पे कौन सा आ रहा है? वेलिन आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कॉडन जो है आप देख रहे हो AUG के आगे नेक्स्ट कॉडन GUA है, और GUA किसको कोड करता है? वेलिन को कोड करता है। फिर पहले वाले अमीनो एसिड के COH ग्रुप के बीच में और दूसरे वाले अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। ये यहाँ पे H2O रिलीज होता है, और H2O रिलीज होने से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर आपको पहले भी बताया था कि जो अमीनो एसिड tRNA होता है, जब tRNA लैंड होता है तो उससे जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है वो इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में काम में आती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम इसके लिए काम आता है। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में फिर से क्या है? मिथाइल एंड वेलिन tRNA एडजेसेंट है PA और A पे, और इनके बीच में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के द्वारा फर्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंड NH2 ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम पेप्टाइडल बॉन्ड कहेंगे। फिर राइबोसोमल ट्रांसलोकेट, फिर क्या होता है? राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता है वन कोडॉन टू राइट, अनचार्ज tRNA इजेक्टेड, अनचार्ज tRNA वापस E साइट पे, कौन सी साइट? इजेक्ट साइट पे, एग्जिट कह दीजिए, एग्जिट साइट पे बाहर निकल जाता है, और नया जैसे जैसे tRNA आता है वैसे वैसे ये राइबोसोमल यूनिट मूव करती है mRNA के ऊपर, जिसको ट्रांसलोकेट कहते हैं। नाउ प्रोसेस रिपीट, वन अमीनो एसिड बीइंग एडेड ईच टाइम द राइबोसोम मूव। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है टिल द टर्मिनेशन, टर्मिनेशन तक ये प्रोसेस रिपीट होता है। इलोंगेशन के अंदर कुछ बात जो और डिस्कस करनी है, द P साइट कंटेन आइदर मिथ्योनिन tRNA और द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, अ न्यू अमीनो एसिड tRNA अराइव्ड बॉन्ड EF2 and EF in prokaryote and EF1 in eukaryote. These are the initiation factor helps in what? Helps in the landing of another tRNA on the A site. And one GTP is also required. It means when the another tRNA landing on the another codon, the one GTP is consumed. फर्स्ट जीटीपी कहाँ कंज्यूम हुआ था? अगर आपको याद रहे तो फर्स्ट जीटीपी भी कंज्यूम हुआ था, ये सेकंड जीटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। फर्स्ट जीटीपी इनिशिएशन के अंदर कंज्यूम हुआ था, और इनिशिएशन में भी कब? जब 30-40S mRNA यूनिट पर पहला टीआरएनए आया था। फर्स्ट टीआरएनए जब पी साइट पे लैंड हुआ था तो पहला जीटीपी कंज्यूम हुआ था। अब ये दूसरा जीटीपी कंज्यूम हो रहा है जब दूसरा टीआरएनए ए साइट पे आ रहा है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा ये बातें। इसके अंदर फिर पहले वाले अमीनो एसिड और दूसरे वाले अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वो पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से। उसके बाद में EFG एक अनदर इनिशिएशन फैक्टर होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में EEF2। इसके साथ में फिर से एक जीटीपी कंज्यूम होता है जो हाइड्रोलाइज ऑफ जीटीपी कॉज शिफ्ट ऑफ राइबोसोम। इसकी जीटीपी की एनर्जी से राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन पॉसिबल होता है अलोंग द एमआरएनए अंटिल द ग्रोइंग चेन इज बैक इन द पी साइड। जब तक ग्रोइंग चेन पी साइड पे बैक नहीं आ जाता, जब तक ये चलता रहता है और जब तक टर्मिनेशन नहीं होता। तो इस तरीके से आप देख रहे हो टोटल 3 जीटीपी कंज्यूम हुए। पहला जीटीपी फर्स्ट टीआरएनए जब पी साइट पे लैंड हुआ था, दूसरा जीटीपी जब सेकंड या अनदर जितने भी टीआरएनए हैं वो ए साइट पे लैंड हो रहे हैं, और थर्ड जीटीपी जब राइबोसोमल यूनिट जो है वो ट्रांसलोकेट हो रही है एमआरएनए के ऊपर। तो टोटल जीटीपी कितने कंज्यूम हो रहे हैं? 3 जीटीपी कंज्यूम हो रहे हैं। टर्मिनेशन, फाइनल कोडॉन ऑन एमआरएनए कंटेन टर्मिनेशन। इसके अंदर जो है रिलीजिंग फैक्टर काम करते हैं। तो प्रोकैरियोट में RF1 और RF2 और यूकैरियोट में ERF1 रिलीजिंग फैक्टर काम करते हैं। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो नीट में भी पूछे जाते हैं। तो रिलीजिंग फैक्टर क्लेव पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द टीआरएनए दैट कैरिड फाइनल अमीनो एसिड, और उसके बाद में जब कंप्लीटली अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन प्रोटीन बन जाती है तो एमआरएनए भी ब्रेकडाउन हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो इससे टर्मिनेशन कहते हैं, जो लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन का।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बन गई है पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड यहाँ से बाहर रिलीज हो जाता है। जब स्टॉपिंग कोडॉन आ जाते हैं, आप देख रहे हो हुआ उग या उगा, कोई भी स्टॉपिंग कोडॉन एमआरएनए पे आ जाता है तो टर्मिनेशन हो जाता है। उसमें रिलीजिंग फैक्टर भी हेल्प करते हैं और ये रिलीजिंग फैक्टर की हेल्प से टर्मिनेशन हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है और एमआरएनए भी डिग्रेड हो जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो चुकी है। यहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज ट्रिगर्ड कॉजिंग द रिलीज पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम टीआरएनए, टीआरएनए इज इजेक्टेड, टीआरएनए यहाँ से इजेक्ट हो चुका है। और लास्टली सारी बिगर यूनिट, स्मॉल यूनिट, ऑल आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर और दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। नो एंटीकोडॉन ऑन अ नॉर्मल टीआरएनए मैच द स्टॉपिंग कोडॉन, ऐसा कोई एंटीकोडॉन नहीं है, टीआरएनए नहीं है जो स्टॉप कोडॉन को मैच कर सके। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज ट्रिगर्ड कॉजिंग द रिलीज ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम टीआरएनए, टीआरएनए इज इजेक्टेड, पेप्टाइड ट्रांसफरेज ट्रिगर्ड हो जाता है, इससे प्रोटीन की लॉन्ग चेन जो है वो भी अलग हो जाती है, राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट हो जाते हैं, आरएफ इजेक्ट हो जाते हैं और लास्टली टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। अगेन एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन होगा, कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन के बाद में पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये कोडॉन टीआरएनए लैंड करेगा, टीआरएनए लैंड करने के बाद में पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद में राइबोसोमल यूनिट ट्रांसलोकेट करेगी आरएनए पे और ट्रांसलोकेट करने के बाद में लास्ट में टर्मिनेशन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ले लेते हैं ट्रांसलेशन के। स्टार्टिंग कोडॉन कौन होता है, एयूजी, एंड स्टॉपिंग कोडॉन तीन तरीके के होते हैं, उगा, उग और उगा, UAA, UGA एंड UAG। नाउ an mRNA also has some additional sequence that are not translated and referred as untranslated region। mRNA के अंदर जो कुछ ऐसे रीजन होते हैं 5' कॉर्नर पे भी और 3' कॉर्नर पे भी जो ट्रांसलेट नहीं करते, ट्रांसक्राइब्ड हो गए हैं, डीएनए से आरएनए में बन चुके हैं लेकिन ट्रांसलेट नहीं होते, उनको यूटीआर कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। At the end, a release factor binds to the stop codon, terminating translation and release the complete polypeptide from the tribosome। Releasing factor help करते हैं और total consumption कितना हुआ, 1 ATP and 3 GTP uses in this mechanism। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कितने GTP काम आते हैं, कहाँ कहाँ GTP कंज्यूम होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर कौन कौन से हैं, पेप्टाइडल बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी कहाँ से कंज्यूम होती है। तो आपको बताया था, डिस्कस किया था जब वीडियो लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि जो एनर्जी चार्ज टीआरएनए जब अमीनो एसिड को किसको दे देता है, जब अमीनो एसिड पेप्टाइडल बॉन्ड बन जाता है तो आपको पता है कि वापस टीआरएनए अमीनो एसिड को छोड़कर चला जाता है, तो उस समय जब अमीनो एसिड का बॉन्डिंग टीआरएनए से जब टूटता है तो वो वाला एनर्जी पेप्टाइडल बॉन्ड के बनने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको इसमें काफ़ी नॉलेज मिली है, तो डेफिनेटली वीडियो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड को। सो गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल योर फ्यूचर। ओके बेटे।